Good evening, everyone, and welcome to the fifth and final session of The Option is Yours, where expert traders from the F&O space demystify concepts around option trading. Talking about today's topic, be strong week after week. Be strong week after week. We will be focusing on some powerful Nifty and Bank Nifty option strategies that can help you to plan your trades better and generate weekly income. Before we proceed, let me read out the disclaimer. Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information purpose only and no way to be considered as an advice or recommendation. Any views and opinions made during this session by the panelists are their personal expressions and solely belongs to them and do not represent those of Paytm Money Limited or and its employees in professional or personal capacity, unless explicitly specified by Paytm Money Limited. Yes. Let's moving on. Let me quickly introduce today's host for the session, Mr. Arjun Tandon. Arjun is a chartered accountant by qualification and a full-time trader by profession. Prior to trading or full-time trading, Arjun had a corporate stint in PwC and KPMG. He quit his Big Four job in 2017 to pursue his passion for trading. He and his team trade a diverse range of strategies spread across multiple time frame and instrument. Backtesting and data analysis lie at the core of whatever they trade, combined with robust execution, solid risk management, and most importantly, discipline. And he's our host today is Mr. Arjun Tandon. Arjun, over to you. Thank you, Peter, for the lovely intro. And thank you, Paytm Money, for hosting this event and having me as a host. Welcome, everyone, to Paytm Money's webinar, The Option is Yours, where we'll try to demystify some concepts around options trading. Now, before we proceed, let me introduce our wonderful guests for the day. We have two professional traders with us, Kapil and Rajesh. So Kapil is the founder of Options 360. Kapil Dhama is a full-time options trader and he's based in Delhi and has two other businesses with interests in edtech and real estate. Kapil started his journey in the stock market a few years back, and prior to that, he was working for the government of India in the Central Labour Ministry, and he has an engineering degree from Delhi Technical University. Coming to Mr. Rajesh Srivastava, he's the founder of Quant Advantages. He's a management graduate with over 20 years of experience as a derivatives trader in the Indian stock market. His experience lies in building options trading system where he accurately tracks and decodes key derivative data points like OI and Greeks. Has developed various data sets that track institutional activity around derivatives and our guests, Phil and hi Rajesh ji, how are you doing? Hey Arjun, thanks for the wonderful intro. Yeah, I'm doing good. Thank you. Hi Kapil, welcome. Hello Arjun, how are you? Well, how are you? I'm fine. So Kapil and Rajesh ji, शुरुआत करते हैं आज के सेशन से. And before we proceed, Kapil, I would like to start with you. What are your preferred option strategies for generating weekly income? Or even before that, what is this concept of weekly income? So the concept behind weekly income कि भाई आपको एक पर्टिकुलर वीक में कोई सेट परसेंटेज कि आपने सोचा है 0.5% मेरे कैपिटल का या 1% मेरे कैपिटल का. वैसे 1% डिसेंट अमाउंट है. मैं बोलूंगा अगर एज ए कि वीकली इनकम चाहिए खाली तो 0.5% में अगर वीकली आता है सो इट्स इनफ अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, इफ यू आर नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर. तो कपिल, फॉर वीकली इनकम आप किस तरह की स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करते हो? ये एकदम डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे. हमेशा मार्केट कंडीशन सेम नहीं रहती. जैसे भी बड़ा लो विक्स है राइट नाउ, प्रीमियम्स बहुत लो है, तो अभी आपको बहुत सोच के मतलब हाई विक्स के मुकाबले ये लो विक्स का एनवायरनमेंट ज्यादा मुश्किल है ऑप्शन स्ट्रेटेजी चूज करने के लिए. हाई विक्स में करो प्रीमियम तो मिलना ही है सेल करने के लिए. लो विक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके पास प्रीमियम जैसे अभी है राइट नाउ, तो ये डिपेंड करता है
वीक बेसिस पे कि किस वीक में प्रीमियम अच्छे हैं, थोड़े बेहतर है। जैसे मेरा एक क्राइटेरिया है कि 700 प्लस अगर स्ट्रैडल में प्रीमियम है, जैसे अगले वीक का आज स्ट्रैडल खुला, शाम को जाते जाते अगर 700 प्लस प्रीमियम है, तो मेरा क्राइटेरिया है कि एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर 700 से नीचे है तो इट मीन्स कि प्रीमियम कम है। जैसे आई थिंक आज 600 के आसपास खुला स्ट्रैडल, तो इट मीन्स कि प्रीमियम जस्टिफाई नहीं कर रहे मार्केट के मूव को। तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में जाना चाहिए और आयरन फ्लाई इस टाइप की स्ट्रेटजीज अवॉइड करनी चाहिए, दूर की स्ट्रेटजीज में जाना चाहिए। भले प्रीमियम कम मिले, स्ट्रैंगल्स है कुछ, जैसे बैटमैन है, स्ट्रैंगल है। कैलेंडर में भी जा सकते हैं, लो विक्स है तो यहाँ से विक्स इंक्रीज होगा तो आपको पैसा बनेगा। तो ये चूज करना पड़ता है, पर मतलब वीक बेसिस पे कि क्या कंडीशंस हैं। हाई विक्स होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ स्ट्रैंगल और आयरन फ्लाई। लो विक्स होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ एकदम मंथली में जाके स्ट्रैंगल, नॉट इन वीकली, लेकिन वो वीक में अच्छा पैसा दे देती हैं, और कैलेंडर्स। तो कपिल, ये आप डिसाइड कैसे करते हो कि वीकली ऑप्शंस लिए जाएं या मंथली लिए जाएं, या कौन से ऑप्शंस किस सिचुएशन में बेहतर रहते हैं? जी, जैसे मैंने क्या बताया, अगर वीकली प्रीमियम बहुत अच्छे हैं तो हमें वीकली प्रीमियम में ही जाना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, 700 से ऊपर अगर स्ट्रैडल खुला है वीक का, तो आप मान सकते हो कि एवरेज प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हो। 800 प्लस खुला तो आप मान के चलो एवरेज से ऊपर प्रीमियम है, अबव एवरेज है। अगर 700 से नीचे खुला है तो आप वीक की स्ट्रेटजीज में अवॉइड करना चाहिए नियर टू एटीएम, जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे आयरन फ्लाई नियर टू एटीएम स्ट्रेटजी है, आपको उस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज 600 अगर प्रीमियम मिला है, उसमें से आपको कुछ बाइंग में भी कॉस्ट देना पड़ेगा अगर आप हैज कर रहे हो तो 600 में से पता चला आपके 150 हैज में चले गए, बचा 450। अब लास्ट वीक 550 रुपीज प्रीमियम थे और मार्केट क्लोज हुआ है 1000 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो यानी कि प्रीमियम अपने मूवमेंट को जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अवॉइड करना चाहिए नियर एटीएम स्ट्रेटजीज लो वीक्स में। दूर की स्ट्रेटजीज लो वीक से मतलब ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा, ज्यादा मूव आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो उस केस में जैसे मैंने आपको क्या बताया, डबल रेशो, आप दोनों साइड के रेशो बना सकते हो। 500 पॉइंट का एक स्पैन रख के 1:4 1:5 का रेशो क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रैंगल नहीं बेचना है। या फिर जैसा भी लो विक्स है, यहाँ से विक्स अगर राइज होता है तो आप डायगोनल कैलेंडर्स बना सकते हो। तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी में कब जाना और कौन सी कब अवॉइड करनी है। हाई विक्स में आप कैलेंडर बनाओगे, वो आपको बर्बाद करेगा। विक्स जरा सा नीचे आएगा, आपके नेक्स्ट एक्सपायरी में प्रीमियम ज्यादा टूटेंगे, करंट वीक में प्रीमियम ही नहीं टूटेंगे ज्यादा, क्योंकि होंगे ही नहीं। तो ये तो मतलब वेरी करता है। मेरा मानना है कि मैं केवल ये देखता हूँ प्रीमियम कितने हैं, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। गॉट इट कपिल, समझते हैं आपसे थोड़ा और। उससे पहले राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, आप किस टाइप की स्ट्रैटेजीज करते हो वीकली ऑप्शंस में? अर्जुन, देखो ये स्प्रेड्स और कैलेंडर, ये सभी अभी तो पैसे नहीं दे रहे हैं। आप स्ट्रैडल बेचो, स्ट्रैंगल बेचो, पैसे नहीं दे रहे हैं। ऑफ कोर्स बाइंग में तो और भी पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा कस्टमाइज किया है, लुकिंग एट द विक्स लेवल, द मार्केट लेवल। और जब मैं विक्स की बात करूँ तो कहने के लिए विक्स 12 का है, बट सम टाइम ड्यूरिंग अ डे आपको विक्स 25 के बराबर दिख जाएगा, इतना इतना वोलेटाइल मूवमेंट आता है। So what we have done, we have customized the whole strategy. Like we have done a couple of things. Like first of all, we have deployed a basket of strategies because the win is on average. एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम करेगा, नहीं तो तीसरा करेगा, क्योंकि ये बड़ा ही एबनॉर्मल मार्केट है। मैंने मार्केट ठीक है, मार्केट हमेशा इरेशनल रहता है, बट ओवर द लास्ट 3-4 ईयर we have never seen this kind of tough market for option seller. So first of all, we have deployed a basket of strategies, and these are like, if I have to say, the idea behind it is to get in and get out. Okay, Arjun, like देखो पूरा बाजार एक फ्लैट चल रहा है, अचानक से एक बड़ा स्पाइक आएगा और आपका स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। तो अब हमने उसको दिन में 8-10 हिस्सों में बांट दिया है, और छोटे छोटे हिस्से में ट्रेड करो, निकल जाओ, जो पैसे आए अंदर करो, क्योंकि जब वो स्पाइक आएगा वो आपका एक ही हिस्सा खराब होगा ट्रेड का, ठीक है। और हमने हर एक मिनट का लाइक
लाइक ओवर द लास्ट 1 ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था कि कितना मूवमेंट होता है अगर हम 5 मिनट में मार्केट को डिवाइड कर दें या 10 मिनट पे करें या 15 मिनट पे करें। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि द मूवमेंट इज वेरी मिनिमल बिटवीन 11 to 2। ओके, तो ये एक लंबा पीरियड है, आप एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी सेल करके और 2-3 घंटे वेट कर सकते हो, बट देन बिफोर 11 यू हैव टू गेट इन एंड गेट आउट। ओके, लाइक यू हैव टू कीप योर ट्रेड 30-35-40 मिनट लॉन्ग एंड देन जो पैसे आए अंदर करो, फिर नया सेलिंग करना है। तो ये तो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है। व्हेन द मार्केट चेंजेस, द बिहेवियर चेंजेस, वी विल रिफाइन, रीडू आवर स्ट्रैटेजीज। गॉट इट। राजेश जी, सो जितना मुझे समझ आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ योर सिस्टम्स जो आप कर रहे हो वो इंट्राडे है। हाँ देखो अर्जुन, अब हमने एक डेटा एनालिसिस की थी लास्ट जुलाई से अब तक के लिए। अब तक मैं फरवरी की बिगिनिंग वाली वीक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 36 डेज मार्केट ओपन लेस देन 0.25%। व्हाट इट मींस कि एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही खुल रहा है बाजार। देयर वाज अ डे व्हेन वी गैप डाउन 514% एंड देयर वाज अनदर डे हमारा 420 पॉइंट का गैप अप था। तो ये बहुत इरेशनल गैप अप गैप डाउन का टाइम है। अभी तो थोड़ा कम भी हो गया अगर आप लास्ट ईयर था, ठीक है, या अक्टूबर तक। तो ओवरनाइट ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ इट इज इन योर फेवर यू मेक मनी, इफ इट इज नॉट इन योर फेवर यू डोंट मेक मनी। सो वी डिड नॉट टुक दैट चांस, ठीक है। सो वी कीप आवर स्ट्रेटजी इंट्राडे ओनली। सिर्फ 35 दिन के भरोसे हम 200 दिन को रिस्क नहीं डाल सकते, राइट। सिर्फ 35 दिन ही एक साल में मार्केट नॉर्मल खुला है। सो एवरीथिंग इज इंट्राडे नाउ। गॉट इट, गॉट इट। राजेश जी, तो जो आप इंट्राडे स्ट्रैटेजीज करते हो, ज़्यादा आपका बेंड टुवर्ड्स ट्रेंड रहता है या आप प्रेफर करते हो कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा ट्रेड करा जाए? अर्जुन, आप जानते हो मैं प्रॉप ट्रेडर हूँ, तो बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजी डाला, थोड़े से डेल्टा न्यूट्रल है, थोड़ा ट्रेंडिंग है, ठीक है, थोड़े न्यूट्रल स्टार्ट करते हैं, बट देन एज द मार्केट प्रोग्रेसेस, डे प्रोग्रेस, वी मेक इट ट्रेंडिंग, वी मेक इट डायरेक्शनल, ठीक है। सो अभी तो हम एक बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज 8 या 9 स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत करते हैं दिन का। थोड़े डेल्टा न्यूट्रल भी हैं और मोस्टली व्हाट सी डायरेक्शनल या फिर ट्रेंडिंग करना पड़ता है। And these all are defined in our algo system, so the system takes care of everything. But then if you ask me logic behind it, so it's like start few sets of strategy under delta neutral and then few sets start neutral and few start directional itself, ठीक है, and as the day progresses just keep managing those trades. कपिल, आप किस टाइप की स्ट्रैटेजीज करते हो? आई सपोज ज़्यादा आपका पोजिशनल सेटअप रहते हैं या इंट्राडे भी करते हो आप? नहीं, मेरा क्या है कि कैपिटल डिवाइड रहता है, पोजिशनल, इंट्राडे और कुछ थोड़ा बहुत एल्गो पे। 3 टाइप का मैं कैपिटल डिवीजन मैंने करके रखा है। 40% मेरा रहता है पोजिशनल में, पोजिशनल ट्रेड्स में, 30% मेरा एल्गो पे चलता है और 30% में इंट्राडे डिस्क्रिशनरी ट्रेड करता हूँ खुद से, उसके लिए बचा के रखा रहता है। सो मेरा बेसिकली आप मान सकते हो कि मेजर मेरा फोकस उस पे ही है, पोजिशनल पे ही रहता है। कपिल, एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आयरन फ्लाइज, एंड आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज भी है आयरन फ्लाइज के अंदर। तो आयरन फ्लाइज का आपका प्रोसेस क्या रहता है ट्रेडिंग का? आप इसको कब इनिशिएट करते हो? आपने कुछ सिनेरियोज बताए जहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल रहता है आयरन फ्लाइज करना। तो आयरन फ्लाइज आप कब शुरुआत करते हो? क्या फ्राइडेज को ही डाल देते हो या मंडेज को प्रेफर करते हो? कैसे रहता है? देखो, इसमें 3-4 अलग टाइप के आप चीजें कर सकते हैं। अगर आपको करना है एडजस्टमेंट के बिहाफ पे आपको जाना है, तो आप थर्सडे इवनिंग डिप्लॉय कर दो और नेक्स्ट थर्सडे तक आप उसको एडजस्ट करो। एक तो सिस्टम हो गया ये। एक अगर आपको एडजस्ट नहीं करना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं एडजस्ट नहीं करना, बस विंग लेके ब्रेक इन में विंग लेंगे और छोड़ देंगे, तो उसके जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो है आप ट्यूसडे सुबह बनाओ और थर्सडे सुबह एग्जिट कर लो। बाकी पूरे वीक में कहीं बैक टेस्ट में कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है अगर आप इस तरीके से जाते हो। केवल ट्यूसडे टू थर्सडे मॉर्निंग 2 दिन में आपको कुछ पैसा बन जाएगा। फिर एक आता है मंथली में, जैसे मेरा अप्रैल का भी अनफ्लाई पड़ा है और मार्च का भी चल रहा है। मार्च का अनफ्लाई मेरा 1200 पॉइंट के भी प्लस में खड़ा है, 1200 पॉइंट के मैं प्रॉफिट में हूँ अभी राइट नाउ। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अप्रैल का हमने अभी डाल दिया, जैसे मार्च एंड आने होगा फिर हम मई का डाल लेंगे। लेकिन डालते किस दिन है? जिस दिन विक्स थोड़ा इंक्रीज होके मिले। मान लिया कोई इवेंट है, मान लिया फेड का इवेंट है कि भाई रात को फेड का इवेंट है, आरबीआई का पॉलिसी है, इस टाइप का छोटा मोटा कोई इवेंट आता है, तो जो विक्स है मतलब जो प्रीमियम्स है नॉर्मल से आईवी थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं
और मंथली में वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मंथली का वेगा और ज्यादा हाई रहता है इन कंपैरिजन में वीकली, तो वहां पे अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। मेरा क्राइटेरिया 2200-2300 रुपए अगर मिले मंथली में तो मैं उसको बना लेता हूँ। तो कपिल, क्या ये आप बैंक निफ्टी में ही करते हो या निफ्टी में भी करते हो? मैं खाली बैंक निफ्टी में। निफ्टी के प्रीमियम ना, मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ऑफ मूव के अकॉर्डिंग, निफ्टी के प्रीमियम अच्छे नहीं हैं अकॉर्डिंग टू निफ्टी के परसेंटेज ऑफ मूव। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर रहा है, निफ्टी अपने मूव के अकॉर्डिंग प्रीमियम को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 150-150 पॉइंट का मूवमेंट आता है निफ्टी में। आज कितने प्रीमियम खुले थे? 60 रुपए खुले होंगे हार्डली सुबह। 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। सो प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी में जितना प्रीमियम आपको वीक का स्टार्टिंग में मिलेगा ना, उतना तो वो एक दिन में मूव कर रहा है। प्रॉब्लम ये है। यानी एडजस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़ा एक ज्यादा कुशन देते हैं आपको? ज्यादा कुशन भी देते हैं और ओटीएम में थोड़ा प्रीमियम रहता है। बैंक निफ्टी की अच्छी चीज क्या है ना, ओटीएम में पैसा मिलता है। निफ्टी के ओटीएम में 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए। अब उसमें क्या होता है, वो 1 मिनट में 30-40 हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा ओटीएम में भी जाओगे आपको प्रीमियम मिल जाएगा। राजेश जी, आपकी भी कोई प्रेफरेंस है इन दोनों में से किसी के लिए, या इक्वल एलोकेशन करते हो आप? हमारा इक्वल एलोकेशन रहता है। आई मीन डिस्क्रिशनरी नहीं करते हैं, क्योंकि विशफुल ट्रेड ऑलवेज गिव्स यू पेन। Arjun, before moving forward, I think we can ask our audience to put their question in the chat. Chat पे वो लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं और they can DM us. So we can ask those questions to Rajesh and Kapil. That would be great. A lot of people are listening and आप लोगों के I'm sure बहुत से सवाल होंगे, and we would prefer कि आप अपने क्वेश्चन शेयर करो so that relevant questions हम इन दोनों एक्सपर्ट से पूछें and आपको हाथ की हाथ जवाब भी मिले। Right. End of the session we'll ask those questions. Yeah, you can continue with the discussion. तो कपिल, एक स्ट्रैटेजी यार और बहुत पॉपुलर है, मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, और ये एक सुपर हीरो स्ट्रैटेजी है, बैटमैन स्ट्रैटेजी। क्या है ये बैटमैन? सो बेसिकली बैटमैन आप ये, मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, आपने 2 रेशियो स्प्रेड बनाए हैं दोनों तरफ। कॉल की तरफ रेशियो स्प्रेड बना लिया, पुट की तरफ रेशियो स्प्रेड बना लिया, और थोड़ा दूर जाके दोनों तरफ कुछ हैज बाई कर लिए। सिंपल, मतलब एकदम सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके चलते हैं। जैसे मान लिया आपने एक लॉट खरीदा, अभी राइट नाउ बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ 41,200 के आसपास, 300 के आसपास। आपने क्या किया, 41,500 का एक लॉट बाई किया और 42,000 के 5 लॉट शॉर्ट कर दिए। इट्स बेसिकली रेशियो स्प्रेड ऑफ 1:5। सेम आपने पी की साइड बना लिया कि आपने 41 की पुट बाई की और 40,500 के 5 लॉट शॉर्ट कर दिए। तो ये सिंपल रेशियो स्प्रेड हो गया। अब इसमें और ऊपर और नीचे जाके 8-10 रुपए के कुछ हैज बाई कर लेते हैं। क्यों? एक तो मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है और ऊपर से पूरा ओवरनाइट एक लिमिटेड रिस्क फिर भी एक लिमिटेड रहता है। तो इसलिए बैटमैन में अच्छी चीज क्या है कि रेंज के बीच में भी अगर रहता है, आप एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके शुरू में बैठे होते हो, तो अगर रेंज के बीच में भी क्लोज हो जाए तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। ये सिंपल बैटमैन है। इसको आप कब इनिशिएट करते हो, कौन से सिनेरियोस में ये प्रेफरेबल रहता है? अब तो बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लो विक्स रेंज बाउंड मार्केट बेस्ट है। तो ये प्रेफरेबल मार्केट अभी कंप्लीटली रेंज बाउंड है अभी। ओके, तो लो विक्स एनवायरनमेंट में आप कहते हो रेंज एक्सपेंशन होगी एंड आपके फेवर में चले तो इसमें बेनिफिट होता है आपको। देखो ऐसा ना कि अगर मैंने 41 और 45, 42 का बनाऊं मैं, और नीचे 40,000 और 41,000 और 4,500 का बनाऊं, तो मेरी एक रेंज है, मेरा जो सेल पोजीशन है वो है या तो 40,500 पे है या 42,000 पे है। और इसके बाद ही मुझे कुछ कुशन मिलेगा मेरे प्रॉफिट का। बीच में मेरा एक ऑप्शन बाई है, जो अगर मेरी किसी सेल की तरफ बाजार जाता है तो वो ऑप्शन 500 पॉइंट इन द मनी भी हो जाएगा। अगर मार्केट 42 पे जाके एक्सपायर होती है तो मेरा 41,500 सीधा 500 रुपीज पे खड़ा होगा। तो इसमें कुशन रहता है थोड़ा सा, क्योंकि बीच में आपका बाई है, बाई लेग आपके बीच में आएगी। तो अगर बाजार आपके सेल की तरफ मूव भी करता है, मतलब नेक्ड स्ट्रेंगल बेचने से बेटर है, थोड़ा मूव करता है तो आप पहले आपका बाई इन द मनी आएगा, तब आपकी सेल को पैनिक आएगा। तो प्रेफरेबल है, एडजस्टमेंट आना चाहिए उसका कि कब करना और कब नहीं करना। सो फिलहाल तो अच्छी चल रही है अनडाउटली। ये जो 5 लेग्स एक के आगे खड़ी हुई हैं,
जब मूव आपके हम्म, अगेंस्ट जाता रहेगा तो ये पांचों एक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी, एज इन इनके डेल्टास बढ़ने लग जाएंगे। यस। तो आप इनको एडजस्ट कब करोगे? मेरा सिंपल है, बैटमैन को मैं जब एडजस्ट करता हूँ, जैसे मेरी किसी एक बाई लेग पे जाता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि अब मुझे एडजस्टमेंट के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मेरी सेल पे पहुंच के मैं एक्शन लूं। ऐसा नहीं हो कि मेरे घर में पूरा पानी भर गया तब मैं एक्शन लेने चलूंगा। अगर अड़ोसी पड़ोसी के घर में भर जाएगा तो भी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो जब मेरी बाई लेग पे आ जाता तो मैं उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके राजेश जी, हाई विक्स और लो विक्स में क्या आपके सिस्टम्स डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज ट्रेड करते हैं? डेफिनेटली डिफरेंट सब टाइप के स्ट्रेटजीज ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अपना, इफ यू आस्क मी, द कोर ऑफ आवर ऑल द स्ट्रेटजीज, सो आवर फोकस इज टू फाइंड द डीके प्रॉन स्ट्रेटजीज, ओके, जो डीके के लिए तैयार होता है एकदम से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सोमवार के सुबह, इट्स मंडे है, 100 रुपए का जो ऑप्शन एक 18 के विक्स पे होगा ना, it is more prone to decay than on a Thursday morning, ठीक है। but then a VIX of 12, that 100 rupees option possibly, a second ATM or the first OTM, ठीक है। तो अपने स्ट्रैटेजी का जो कोर है हम ढूंढते हैं। सी, अल्टीमेटली एन ऑप्शन राइटर को क्या चाहिए, उसने डिके ही चाहिए होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो rather than we prepare ourselves for multiple adjustment, find the one जो कि इसे कैसे बोलते हैं, पके हुए आम को ढूंढो और वो ज्यादा इजी है तोड़ना बजाय कि एक कच्चे आम को तोड़ना, राइट। तो डीके प्रोन ऑप्शंस ढूंढते हैं हम, अलग अलग दिन, अलग घंटों, लाइक सी an option on Thursday morning 9:30 have a different behavior than an option at 12:30, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आपके जो सवाल है कि अगर हाई विक्स पे हम डिफरेंट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, यस, हाई विक्स पे हम डिफरेंट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। पर हाई विक्स पे हम कभी कभी बाई वाले स्ट्रेटजीज भी ले आते हैं, ठीक है। बट देन दैट हैज टू बी नो अबव 20-21 विक्स, ठीक है। और दो तीन चीज़ है कि हम ढूंढते हैं थोड़ा पॉजिटिव स्क्यू रहे, क्योंकि जस्ट एन इवेंट एंड देन द बाई गेट्स आउट ऑफ योर हैंड। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से लगा कि इवेंट के अलावा भी थोड़ा और आगे का भी एक्सपायरीज में थोड़े से एंटिसिपेशन है बाजार तेज मूव करने का। तो अर्जुन, आपके सवाल का आंसर ये कि यस, वी बिहेव डिफरेंटली, वी ट्रेड डिफरेंटली और एट अ डिफरेंट विक्स लेवल। एंड राजेश जी, बहुत से लोग हैं जो प्रेफर करते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रखना डिफरेंट दिनों के लिए, से समथिंग डिफरेंट फॉर फ्राइडे, समथिंग डिफरेंट फॉर मंडे एंड सो ऑन। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये कर्व फिटिंग में आता है? क्या आप इसको प्रैक्टिस करते हो? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सेम? Yes, that's what we do. See, आप एक चीज जान लो, अब 9-20 का एटीएम बेचना 1 टका भी नहीं छूटेगा पूरे महीने में, ठीक है। तो वो सब तो काम नहीं कर रहा है ना। अगर कोई लेकर आ जा रहा है 1 टका 2 टका, तो इट्स बेटर ट्रेडर देन मी। तो अब आपको थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा और डायनामिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आप पहले अपन लोग, लाइक अगर आप 2 साल पहले याद करो तो 9-20 में कॉल पुट बेचो, एटीएम बेचो और पैसे आते थे शाम तक, है ना। अब तो नहीं हो रहा, 1% भी नहीं आ रहा पूरे महीने पे, पूरे साल की भी बोल सकता हूँ मैं, है ना। तो डायनामिक होना पड़ा। तो अब हम मंडे को अगर हम एटीएम बेच रहे तो ट्यूसडे को पॉसिबली एटीएम का द मूव मे बी अ डिफरेंट वन, ओके। तो हम मोर देन द स्ट्राइक वी आर लुकिंग एट द प्राइस ऑफ द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। ओके एंड राजेश जी, ओके, सो एट डिफरेंट डेज वी हैव अ डिफरेंट टारगेट प्रीमियम। जैसे मैंने बताया, सोमवार को हम 100 रुपीज वाले प्रीमियम टारगेट करते हैं, बट देन नॉट थ्रू आउट द डे, देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस अराउंड दैट। बट देन इफ यू आस्क मी, यस, इट इज दैट व्हाट वी टारगेट ऑन द मंडे मॉर्निंग एट 100 रुपीज प्रीमियम्स। सो आप डेल्टा बेसिकली अपने प्रीमियम से मैनेज कर रहे हो, मतलब यू टेकिंग केयर ऑफ डेल्टा? हाँ, और हाँ, वो डेल्टा, देखो इस बाजार में तो डीके भी नहीं हुआ है, बहुत बहुत ऑप्शन के पैसे ही कम है ना, तो थोड़ा डेल्टा तो आपको राइड करना पड़ेगा, राइट। तो यू नो व्हाट, तो छोटे स्टॉप लॉसेस रखने पड़ते हैं और अलाउ वन लेग टू कंटिन्यू, कीप द ऑप्शन टू री एंट्री। So these are the काइंड ऑफ कोड अनकोड ट्रिक्स ऑफ दिस मार्केट।
सी आप 12:30 में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिटेबल थे आप, सडनली एक 200 पॉइंट का स्पाइक आया, आपका कॉल का स्टॉप लॉस उड़ गया और जो भी पैसे आ रहे थे चले गए। बट देन जस्ट 5 मिनट बाद वो पैसे नीचे, वो कॉल का स्पाइक खत्म हो जाता है। तो पॉसिबली आप एक बैक, हम लोगों ने एक बैक टेस्टिंग करी है और देखा कि ये स्पाइक एक सर्टेन पीरियड ऑफ द डे आ रहा है, तो उस पीरियड में जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड उसमें री एंट्री के ऑप्शंस ओपन है हमारे। तो चलो आपने एक स्पाइक में उड़ा दिया हमारा स्टॉप लॉस, जब लौट रहे हो वापस स्पाइक खत्म हो रही है तो हम री एंट्री भी ले लेते हैं। तो थोड़ा डायनामिक डिसीजन मेकिंग है अभी। पुराने तरीके से तो पैसे नहीं आ रहे हैं, 1% भी नहीं आ रहा था, हमने वो बहुत मेहनत की उसके पीछे। राजेश जी, इसका एक ये भी रीज़न है कि बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कॉमनली डिप्लॉयड होने लग गई हैं और बहुत लार्ज स्केल पे डिप्लॉय हो रही हैं। एंड मेरा मानना है कि देयर आर स्टॉप लॉसेस इन क्लस्टर्स, क्योंकि कॉमनली यूज टाइम्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं जिनका स्टॉप लॉस एक ही जगह पड़ा हुआ है और इस वजह से स्पाइक्स आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगता है आपको? आई हम लोग ये डेटा हम लोगों ने क्रंचिंग नहीं किया कि ये जो मूव्स हैं कितने स्टॉप लॉसेस उड़े हैं क्या है, बट आई कैन टेल यू कि यस, वॉल्यूम से तो पता ही सकते हैं ना कि अब पहले से कम हो गए हैं लोग ट्रेडर। बिल्कुल। ट्रेडर कम हो गए हैं। तो अगर ये सीन पहले भी था तो फिर पहले तो काम कर रहा था। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस से। कपिल, आपके लिए क्वेश्चन है, मृत्युंजय ने पूछा है। जानना चाहते हैं कि स्प्रेड्स काफ़ी ट्रेड करते हो आप, तो थोड़ा समझना चाहेंगे कि स्प्रेड्स आप कौन से सिनेरियोज में डालते हो, किस सिचुएशन में फेवरेबल रहता है स्प्रेड्स को एंटर करना और उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? स्प्रेड्स हम तभी यूज करते हैं जब हमें डायरेक्शनल प्ले करना हो। मतलब मैं बेसिकली तभी यूज करता हूँ जब मुझे डायरेक्शनल प्ले करना हो। लेट एज जो मेरा व्यू है कि बुलिश है तो मैं डेबिट स्प्रेड, मैं सिंपल डेबिट स्प्रेड ही बनाता हूँ, कैट स्प्रेड अवॉइड करता हूँ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बनाता हूँ, नहीं तो नहीं। उससे ज्यादा मैं स्ट्रेंगल बेचना प्रेफर करता हूँ फिर। तो सिंपल सा है, अगर बाजार मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा 41,200 पे, तो मैं 41,500 का कॉल बाई करके और 41,800 या 900 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा। उसमें मेरा एक सिंपल क्राइटेरिया है जब मैं स्प्रेड बनाता हूँ कि जो मेरा सेल प्रीमियम है वो मिनिमम मेरे बाई प्रीमियम का हाफ मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं 150 रुपीज का ऑप्शन बाई कर रहा हूँ तो मुझे 75 या उससे ऊपर का ऑप्शन ही शॉर्ट करना है, चाहे मुझे एक स्ट्राइक अंदर आना पड़े। क्योंकि मेरा ये मानना है, आपने 150 का बाई किया और 20 रुपीज का सेल कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो नहीं भी सेल करोगे तो काम चल जाएगा। अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता तो कम से कम आपकी जो बाइंग है उसका 50% आप रिकवर कर लो। एक सिंपल सा मैं एक लाइन बता देता हूँ, अप्रोच का ये डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं तो बेसिकली यू आर प्लेइंग लाइक एन ऑप्शन बायर। आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो, उसके अमाउंट को, उसकी कॉस्ट को पार्शली फाइनेंस करने के लिए ऊपर जाके एक ऑप्शन बेच देते हो। दिस इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड। अगर आप क्रेडिट स्प्रेड पर ले रहे हो तो इट मींस यू आर एक्टिंग लाइक एन ऑप्शन सेलर और आप केवल एक हेज बाई कर रहे हो अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए। तो दोनों में अप्रोच एकदम अलग है, दोनों स्प्रेड्स को आप एक जैसा नहीं देख सकते। तो मेरा ये है कि मैं केवल डेबिट स्प्रेड प्ले करता हूँ जब मुझे डायरेक्शनल जाना होता है, और जैसे मेरा ऑप्शन बाइंग लाइक इन द मनी आता है मैं उसमें डेल्टा बुक कर लेता हूँ 60-70 पॉइंट और अगला ऑप्शन बाई कर लेता हूँ जो स्लाइटली ओटीएम होता है। तो मेरा कॉस्ट निकल जाता है, जो मेरा इनिशियली मैक्सिमम लॉस आ रहा होता है वो रिड्यूस होकर या तो जीरो हो जाता है या 30-40 पॉइंट बचता है। फिर मैं उस ट्रेड को रखे रहने देता हूँ कि मैं व्यू के साथ बैठा रहूंगा। ये मेरा तरीका है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट कपिल। एक और सवाल है आपके लिए, और राजेश जी ने भी अभी ये पॉइंट आउट किया था कि आजकल उन्होंने कहा कि पारा की विक्स में 25 के मूव आ रहे हैं। तो मनोज ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या किया जाए ऐसे इन्वायरमेंट में जहां लो विक्स तो है लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है, प्रीमियम्स बहुत लो है आयरन फ्लाई के लिए, तो व्हाट इज योर एडवाइस? जैसे राजेश भाई ने बताया कि वो उन्होंने काफी बैक टेस्ट किया, तो हमने पिछले 1-1.5 महीने बहुत बैक टेस्टिंग की बहुत सारी चीजों को लेके। कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। हमने ये चीज नोटिस करी कि इस पूरे एनवायरनमेंट में लो विक्स और स्पाइक्स में अगर आप 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे ऐसे लोगे तो रिजल्ट्स आर मच बेटर। मैं ये मेरा बैक टेस्ट का रिजल्ट बता रहा हूँ, मतलब 20-30% रिजल्ट आपके इंक्रीज हो जाएंगे। 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग, जो भी 1 मिनट का कैंडल हो, अगर वो क्लोज हो तो आप ऐसे लो
अगर वो क्लोज नहीं, जब तक वो क्लोज नहीं होता तब तक आपको निकलना नहीं है। हाँ, थोड़ा कभी कभी पैनिक आता है, कभी कभी आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस वो स्पाइक बचा देता है। हमारा उससे रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुआ है। हम कुछ अलगों पे भी अपना हमारा हम भी चलाते हैं 30% कैपिटल मेरा अपना, तो उसमें हमारा रिजल्ट काफी इंप्रूव हुआ है। अर्जुन, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कपिल भाई ने काफी अच्छी बात, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ, कैसे इनके जहन में आया थ्रू इन्होंने ये बात कही। देखो, ये हम काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पीछे एक कारण बता रहे हैं, 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल। हम जब बैक टेस्ट करते हैं तो हमारे पास टिक बाय टिक का डेटा नहीं होता बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप टिक बाय टिक का सारा डेटा स्टोर करो तो इट्स अबाउट 53 GB पर डे, ठीक है। आप उतना स्टोर करते नहीं हो, तो आपके पास 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल का ही डेटा मोस्टली, और अगर आप कॉमर्शियल वेबसाइट्स भी देखो तो 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल ही वो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं आपको, ठीक है। और फिर आपने एक बैक टेस्ट किया, एक स्ट्रैटेजी 8%, 6%, 4%, जो भी रिटर्न है, मंथली रिटर्न है, उसको आपने डिप्लॉय किया, और आपका स्टॉप लॉस अगर अब टिक बाय टिक है तो वो मैच नहीं करेगा बैक टेस्ट से। सो इट्स रियली गुड दैट यू कीप योर स्टॉप लॉसेस ऑन 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल। उससे क्या होगा कि आपका बैक टेस्ट विल मैच और इट विल बी क्लोज टू द करंट लाइव ट्रेड्स। समझे क्या? आप आपके पास उतना स्पेस पर्सनल, हम अगर एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो उसके पास तो 53 GB पर डे का स्टोर डेटा नहीं मिलता है बैक टेस्ट करने के लिए ना। तो कपिल जी, और आप अच्छी बात आपने रेस की, और एवरीबडी शुड प्रैक्टिस दिस इफ दे हैव यूज्ड अ बैक टेस्टिंग ऑफ अ 1 मिनट क्लोजिंग कैंडल डेटा, बिकॉज इट विल कीप यू क्लोज टू द बैक टेस्टिंग रिजल्ट। और उसमें आप स्पाइक से ही बच जाते हो राजेश भाई। बहुत सारे हमारे खूब सारे ट्रेड होते हैं, आप स्पाइक बच जाते हैं। हाँ। स्पाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आते हैं, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का स्पाइक हाँ, आता और है। मान लो 2 मिनट में भी है ना, तो री एंट्री का ऑप्शन हमने ओपन रखा है कि मान लो एक हमारे spike आया। हमारे हमारे जो स्ट्रेटेजी चलती है उनमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी 1 मिनट पे है, कुछ तो 2 मिनट पे है, कुछ 3 मिनट क्लोजिंग पे भी है। 3 मिनट क्लोजिंग के उससे भी अच्छे रिजल्ट है। ठीक है। ओके। तो हाँ, तो वही है कि बैक टेस्ट हमने 1 मिनट में क्लोजिंग कैंडल रखी है, इट इज मैचिंग द बैक टेस्टिंग, एंड अगर मान लो स्पाइक 2 मिनट भी लास्ट करता है तो फिर हमने री एंट्री रखा है, चलो 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, उड़ गया 125 चला गया, फिर वापस जब 100 आता तो फिर बेच दो। स्पाइक से बचने के 3 तरीके हैं जो मैं यूज करता हूँ। पहला तरीका 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग। सेकंड तरीका, आप पोजिशनल ट्रेड करो हेज करके, स्पाइक का टेंशन ही नहीं है। ठीक है। और एक तीसरा तरीका है कंबाइंड प्रीमियम। मैं कंबाइंड प्रीमियम डिस्क्रिशनरी बहुत स्ट्रेडल शॉर्ट करता हूँ, डेली, मतलब डेली ही करता हूँ। मेरे को सेटअप है अपना। कंबाइंड प्रीमियम पे आप जाके देखोगे ना तो इतने वाइल्ड स्पाइक नहीं है जितने वाइल्ड इंडिविजुअल लेग पे स्पाइक है ड्यू टू 920 स्ट्रेडल। वो कंबाइंड प्रीमियम पे आपका एसएल बच जाता है, तो आप कंबाइंड प्रीमियम पे भी एसएल ले सकते हैं। अब 920 में कोई कमा के दिखाए। नहीं, कमाने वाले भी उसमें बहुत, एक्चुअली उसके वेरिएशन अब इतने आ गए ना, ओरिजिनल 920 तो खत्म ही हो गया है। खत्म ही हो गया है। अभी तो वेरिएशन पे वेरिएशन घूम रहे हैं। खैर, वेरिएशन में भी पैसा नहीं बन रहा होगा अभी, तो बहुत समस्या है। तो राजेश जी, अभी एक्सपायरी पे क्या हो गया? अगर आप एक लाइन और बोलूं जरा, एक हमें अर्जुन एक चीज और कंटिन्यू करना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा। आप एक्सपायरी के दिन चेक कर लेना, 10 बजे के बाद दोनों साइड का एक मूव जरूर आता है स्पाइक में, और उस मूव का सिंपल टारगेट होता है। आप वॉच कर लो पिछले 10-20 एक्सपायरी जाके, उस मूव का एक सिंपल टारगेट होता है, पहले कॉल को डबल करना, 100 रुपीज के ऑप्शन को 200, और फिर पुट को 100 वाली को 200 करना है। अब 100% से ज्यादा का तो किसी का एसएल नहीं होगा। अब वो एक मूव में सबके टोटल दोनों तरफ के एसएल उड़ा दिए जाते हैं। अब आप करते रहो कितने भी री एंट्री। कपिल भाई, आज दिन में ही मैं किसी को बता रहा था कि ये एक्सपायरी पे इधर W या M बन जा रहा है, और ना कॉल से पैसे आ रहे हैं ना पुट से पैसे आ रहे हैं। दोनों को एक बार डबल करते ना, 70% तक के एसएल उड़ रहे हैं दोनों तरफ के, और री एंट्री भी उड़ रही है। देखो, अदरवाइज भी जिस दिन एक्सपायरी होने, अगर मार्केट M शेप का रहा या W शेप का रहा, इवन N, यू डोंट मेक मनी। आई मीन यू लूज बोथ द स्टॉप लॉसेस। ओके, हाँ, वही हो रहा है। वो तो मार्केट ऐसा होगा। बट ठीक है, दीज आर द लेसन्स वी हैव टू लर्न एंड improve फॉर द नेक्स्ट 5 years। कपिल और राजेश जी, मतलब आई एग्री कि क्लोजिंग बेसिस पे लेने में स्पाइक से डेफिनेटली बच जाते हैं। इससे जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। पहला है कि क्योंकि अब आप कैंडल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस ले रहे हो तो नेचुरली आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं होगा, एंड फॉर अ रिटेलर दैट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट
बिकॉज ऑब्वियसली इसको एल्गो से ही मैनेज करना पड़ेगा. एल्गो कीप्स अ ट्रैक ऑफ द स्टॉप लॉसेस और वो एग्जीक्यूट करेगा कैंडल क्लोज पे. तो पहला तो आई वुड लाइक टू आस्क कि इज इट राइट कि ये एल्गो से ही होगा? एंड दूसरा सवाल ये उठता है कि इसी मेजॉरिटी केसेस में तो डेफिनेटली स्पाइक से आप बच जाते हो, बट उस दिन का क्या जब स्पाइक ट्रेंड बन जाएगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस से 300 पे कटना था और वो एक ट्रेंड या एक एक इतना बड़ा मूव आता है कि वो चीज़ 400 पे होती है जब आप काटने जाओ उसको. तो क्या ऐसा भी है कि ये एक दिन या 2 दिन जो आएंगे और ये 100 पॉइंट ले जाएंगे या 200 पॉइंट ले जाएंगे, तो ये जो पैसे छोटे छोटे करके बचाए हैं ये सब एक ही बारी में वापस जाएगा? ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कुछ? अर्जुन देखो, आप जो बैक टेस्ट कर रहे होते हो तो स्पाइक्स तो उसमें भी है, ऐसा रैंडम वोलाटिलिटी तो उसमें भी रहता है ना. So we have to trust the one which we are like the whole purpose to deploy strategy was the backtesting result. ठीक है. और आप ये तो मान के चलो बैकटेस्टिंग में भी स्पाइक्स आए होंगे, वैसे वाले स्पाइक्स होंगे, वैसे वाले ट्रेंडिंग स्पाइक्स होंगे. तो यू नो जस्ट फॉर वन डे इन अ मंथ और वन डे इन अ क्वार्टर अपने पूरे पूरे 2 साल या 3 साल या 5 साल के बैकटेस्टिंग को क्यों स्क्रैप कर दें, है ना. तो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, वी हैव टू लिव विद दैट. कपिल, एनीथिंग टू ऐड? उसमें क्या है ना, अगर आपका पोजीशन साइजिंग ठीक है ना, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैक टेस्ट रिजल्ट आता है, जो हम इंट्राडे चलाते हैं 30%, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बैक टेस्ट रिजल्ट आया, जो उसने दिखाया कि इसने ये ओवरऑल प्रॉफिट है या पर लॉट इतना रुपया डेली का एवरेज है, उसको तो हम कर लेते हैं हाफ. कि अगर कोई स्ट्रेटेजी 2000 रुपीज पर लॉट दे रही है पर डे, तो हम कंसिडर करते हैं 1000 रुपीज देगी 40 पॉइंट. और जो मैक्सिमम ड्रो डाउन है उसको कर लेते हैं डबल. कि अगर ड्रो डाउन आ रहा 3% का, मैं करते हैं 6% का आ सकता है. ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया. उसके बाद फिर कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपको क्या करना है, जो हेज बाई करके जो क्वांटिटी लोग इंक्रीज करते हैं ना, राइट नाउ इस समय की मार्केट में एकदम भी फेवरेबल नहीं है और बहुत खतरनाक है. आपका जितना कैपिटल है आप पूरा मार्जिन देके उतना ट्रेड करोगे तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपका रिस्क भी कम रहेगा और आप स्पाइक से ही बच जाओगे. तो जो आएगा एटलीस्ट वो आएगा, और जाएगा तो फिर इतना ज्यादा नहीं जाएगा. दिक्कत कहाँ आ रही है, मोस्टली जो रिटेलर है ना, सेबी ने बड़ा वो किया कि भाई हमने मार्जिन खत्म कर दिया और आप हेज बाई करके मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो. अभी इसका ही मिसयूज हो रहा है. लोग एक्सपायर के दिन 1000 पॉइंट फार बाई करते हैं दोनों तरफ, और वो 75 रुपीज का पर लॉट हो जाता है, जो कि 1,60,000 होना चाहिए. तो ऑलमोस्ट 60% रिड्यूस हो गया. इट मींस 2.5x क्वांटिटी हो गई. तो ये सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का है, असल का खेल ही नहीं है. खेल सारा रिस्क मैनेजमेंट का और मेरी पोजीशन साइजिंग का है, मैं ये मानता हूँ. बिल्कुल सही कहा आपने, खेल तो सारा रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग का ही है. कपिल, एक सवाल और है सुभरत की तरफ से कि क्योंकि आप जैसे पोजिशनल ट्रेड्स जो करते हो वो हेज रहते हैं, या चाहे आयरन फ्लाई हो, चाहे बैटमैन हो, चाहे कोई और ट्रेड स्ट्रैटेजी हो, तो ऐसे में क्या कोई हार्ड स्टॉप लॉस भी लगाते हो आप कि इतना लॉस हो जाए तो आप एग्जिट कर दोगे? नहीं, कोई हार्ड स्टॉप लॉस नहीं. जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा होता है स्ट्रेटजी में, जब मैं कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ, अगर हैज है तो उसमें रिस्क लिमिटेड होता है. वो जो स्टार्टिंग में जो रिस्क आता है दिख रहा होता है स्ट्रेटजी, मान लिया कि 300 पॉइंट दिख रहा है, तो मैं क्वांटिटी साइज मेरा उतना ही रहता है कि मैं, अगर ये लॉस अगले सेकंड भी हो जाए तो मुझे पैनिक ना आए. जैसे मेरा फंडा क्या है कि मैं कोई भी स्ट्रेटजी लेता हूँ 5 लाख पे एक लॉट, तो मैं 4-5 अलग-अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज ले लेता हूँ उसमें आराम से. क्योंकि मान लिया मैंने थर्सडे को स्ट्रेटजी ली और फ्राइडे मॉर्निंग सर्किट लग गया, तो मेरी स्ट्रेटजी तो मैक्सिमम लॉस में खुलेगी, चाहे वो हैज भी होगी तो मैक्सिमम लॉस तो हो ही चुका होगा. तो क्या मैं उतना लॉस लेने के लिए अगले सेकंड में रेडी हूं मेंटली कि नहीं? अगर नहीं तो अवॉइड द ट्रेड. अगर आप मेंटली वो लॉस लेने के लिए रेडी हो तो फिर आप जाओ. सही कहा कपिल. और इंट्राडे का क्या? इंट्राडे में क्या आप स्टॉप लॉसेस पे ही रिलाई करते हो या वहां पे भी आप कुछ ओटीएम विंग्स बाय करके रखते हो? नहीं, इंट्राडे मेरा टोटल एसएल बेस सिस्टम है कंप्लीट. ओटीएम इंट्राडे अगर प्ले करना है तो फिर हैज में पैसा क्यों देना है? राजेश जी, आपका भी सेम है?
या इंट्राडे पे स्टॉप लॉसेस पे रिलाई है, बट देन हमने कुछ स्ट्रैटेजी, जैसे कहा हमने वी हैव डिप्लॉयड अ बास्केट स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी में मैक्स स्टॉप लॉसेस भी डाल रखे हैं, क्योंकि एट सम प्लेसेस वी हैव री एंट्री, सो इट शुड नॉट हैपन कि री एंट्री में ही हम 2-3 बार पैसे लग गए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी लेवल पे भी रखा है और लेग लेवल पे भी स्टॉप लॉसेस रखे हैं इंट्राडे पे। गॉट इट। एंड कपिल, एक और सवाल है अखिल का कि आप T+0 लाइन को कैसे मैनेज करते हो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में से, स्प्रेड्स में, आयरन फ्लाइज में? वो जो देखो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो मेरा ये मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ, वो जो ब्लू लाइन है ना, उससे डरना नहीं है। बेसिकली जब मैंने क्या बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी में जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसे लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूं, तो उससे ज्यादा तो लॉस होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो मुझे वो ब्लू लाइन देखने की नीड ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ब्लू लाइन से प्रॉब्लम है तो मैं मेरे अर्ली डेज में क्या करता था कि अगर आयरन फ्लाई मेरा 41,500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 41,000 पे, तो इट मीन्स कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरे आयरन फ्लाई में पैनिक और आना स्टार्ट होगा, ब्लू लाइन लॉस में जानी स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करता था, 2:1 का स्ट्रैंगल शॉर्ट कर लेता था इंट्राडे। जैसे 200 रुपीज का मैंने कॉल बेचा और 100 रुपीज का मैंने पुट बेचा। तो अगर बाजार थोड़ा नीचे जाता है जाएगा तो भले ही मेरी पोजिशनल ट्रेड में थोड़ा लॉस आए, बट इंट्राडे स्ट्रैंगल में मैं ठीक ठाक पैसा बना लूंगा, तो वो उसको कंपनसेट कर लेता है। तो मेरा एक तरीका ये था अर्ली डेज में। अब वो मैं नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी को मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, चाहे अगले सेकंड लॉस आ जाए मैं इसमें बैठा रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मेरा पोजिशन साइजिंग 5 लाख पे एक लॉट है, 5 लाख रुपए पे एक लॉट है, तो मुझे इतनी ज्यादा कोई पैनिक नहीं है। अगर 250 पॉइंट का भी लॉस आता है तो 6,500 रुपए, 6,6200 रुपए होता है, जो कि मेरे कैपिटल का 1.1 या 1.5 1.2% होगा हार्डली, किसी एक ट्रेड में अगर ऐसा हो भी जाता है तो। सो मेरा ये मानना, ब्लू लाइन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार क्या होता है वो थोड़ा पैनिक देता है, और जहां पे भी आप ट्रेड कट करोगे ना, बस उसी के बाद वो पैसा देना शुरू कर देता है। तो ब्लू लाइन से नहीं डरना है, मेंटली प्रिपेयर रहो, पोजीशन साइजिंग अपने कंट्रोल में रखो। मैक्सिमम लॉस अगर किसी ट्रेड में हो भी जाए तो वो पर्टिकुलर ट्रेड आपके ओवरऑल 1% या 1.5% से ऊपर लेके ना उड़े, बस इतना मैनेज रखना, बाकी का आपका काम हो जाएगा। थैंक यू कपिल। राजेश जी, इंट्राडे रिलेटेड बहुत से सवाल हैं और सिमिलर लाइंस पे भी हैं क्वेश्चंस। तो आप इंट्राडे वैसे सिस्टमैटिकली इतना कर रहे हो, सो व्हाट इज दैट एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव जो लोग आजकल इंट्राडे कर रहे हैं एंड वो आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एक तो आपने स्पाइक्स को कवर कर दिया, टाइमिंग्स आपने जैसे बोला डिफरेंट, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू पीपल डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग? अर्जुन देखो, दो चीजें इंट्राडे में अपन लोग अभी तक जो बात की है वो सेलिंग की ही है, ठीक है। बट देन आई पर्सनली नो लार्ज सेट ऑफ पीपल, मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी डेटा की बात की कि सिर्फ 35 दिन ही ओवर द लास्ट 235 डेज वी हैड अ नॉर्मल ओपनिंग, अदरवाइज गैप अप गैप डाउन। तो ऑप्शन बाइंग तो ओवरनाइट का सोचो ही नहीं। और अगर इंट्राडे में भी करते हो तो देखो, इसको ऐसे बात करते हैं, आज थर्सडे है, देयर इज नो बेटर डे देन टुडे टू टॉक अबाउट दिस। हीरो जीरो तो भूल ही जाओ, बताता हूँ क्यों। हमने बिफोर कोरोना एक डेटा क्रंचिंग की थी कि ये हीरो जीरो में पैसे आ कब रहे हैं। तो आपको पैसे कब आएंगे, जब आप 2 बजे के बाद 300 से ज़्यादा पॉइंट मूव करो बैंक निफ्टी में, ठीक है। अच्छा अर्जुन, ये डेटा मैं प्री कोरोना का बता रहा हूँ, पोस्ट कोरोना तो पूरी पूरी ट्रेडिंग ही सिस्टम दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। बट देन पीपल स्टिल फॉलो दैट हीरो जीरो थिंग। सो हीरो जीरो में पैसे आते कब हैं, तो 2 बजे के बाद अगर 300 या उससे ज़्यादा का मूव है तभी आपको हीरो जीरो पैसे बन रहे हैं। अब हमने देखा कि ठीक है, ये 200 पॉइंट या 300 पॉइंट ज़्यादा का मूव आता कब है। अर्जुन, you don't believe, just 13 out of 52 expiries you get that hero zero वाला move, 300 point move, okay। तो ठीक है, चलो 13 एक्सपायरी ट्राई करेंगे, हम पूरे 52 वीक ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर लूजिंग मनी इन अबाउट 38 वीक्स। आप हर एक्सपायरी पे ट्राई कर रहे हो हीरो जीरो, राइट। 30, अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि चलो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट बड़े होते हैं हीरो जीरो में। पहली बात, स्टॉप लॉस के आप जीरो के लिए खेल रहे हो, ठीक है। तो आप 38 वीक जीरो कर रहे हो और 13 वीक पैसे बना रहे हो। उसके बाद बात आती है कि ये 13 वीक कौन से हैं। सो व्हाट वाज सरप्राइजिंग, 8 आउट ऑफ द 13 आर द मंथ एंड एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरीज,
ठीक है. So if at all you have to play hero zero, I would say go and play on the monthly expiries, because आप सिर्फ 4 एक्सपायरी ही स्टॉप लॉस करोगे, बाकी तो 8 में तो मूवमेंट आ ही रहता है ना पहले. समझे क्या? तो लार्ज पार्ट ऑफ ऑप्शन बायर, लार्ज पार्ट ऑफ इंट्राडे रिटेल ट्रेडर गो फॉर बाइंग, एंड देन उसमें तो थर्सडे के दिन सभी हीरो जीरो खेल रहे हैं. तो आप हीरो जीरो भूल जाओ, क्योंकि उसमें पैसे नहीं है. डेटा डेटा तो एक्चुअली वो खाता है, आपने पैसे बनाए होंगे वो, चलो ठीक है. आप ऑप्शन, पहली बात ऑप्शन बायर को किस्मत के अलावा बहुत कुछ साथ चाहिए पैसे बनाने के लिए. ठीक है. और बहुत कुछ क्या है उसमें, एक चीज मैं भी ऐड कर देता हूँ. और हीरो जीरो भूल जाओ. दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो रिमेंबर वन थिंग, एन ऑप्शन बायर नीड एन एक्सट्रीम वोलाटिलिटी. छोटे मोटे वोलाटिलिटी में उसको पैसे नहीं आएंगे. ठीक है. अभी ऐसा क्या इंडिकेटर है, कौन सा ऑक्सीलेटर है जो आपको एक्सट्रीम वोलाटिलिटी का हिंट दे दे? तो याद रखना, आपका ऑप्शन का जो भी डे हाई प्राइस है, आप डे हाई से 10% नीचे, सपोज एक ऑप्शन 100 रुपए का है, 90 रुपए के आसपास है तभी लो. नहीं तो आप जान लो कि 100 का हाई अगर अभी 60 का ट्रेड कर रहा ना, तो वो एक्सट्रीम वोलाटिलिटी में नहीं है, आप नॉर्मल वोलाटिलिटी में अभी जी रहे हो और पैसे नहीं आएंगे. ठीक है. 60 का 10 बार में एक बार दोबारा से 100 टच कर दे. बट देन द बेस्ट वे फॉर एन रिटेलर इज टू, इफ यू आर बायर, आई मीन सेलर के तो अपने अपने स्ट्रेटजीज हैं, अपने अपने एडजस्टमेंट्स हैं. इफ यू आर ए बायर, मेक श्योर यू बाय द ऑप्शन व्हेन यू आर इनटू एक्सट्रीम मूव. और कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का प्राइस लगा दो, डे हाई के 10% के अंदर ही खरीदो. और योर स्टॉप लॉस शुड बी विद इन द 10% to 15%. इफ इट इज गोइंग बिलो दैट, एग्जिट दैट, बिकॉज you go and back test it, you don't make money about 66% time if you're buying it below the 10% high of the day. ठीक है. तो रिटेलर के लिए यही कि आप बाई करो, हीरो जीरो मत बाई करो. बट जब बाई करो, आप एक्सट्रीम मूव का वेट करो. छोटे मोटे मूव में आपको पैसे नहीं आएंगे. आप अगर कंपल्सिव ट्रेडर हो, नॉर्थ ईस्ट में ऑप्शन बाई करना ही है, स्ट्रैडल बाई करना ही है. हम तब से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेल की बात कर रहे हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु बाई स्ट्रैडल. छोटे स्टॉप लॉस पे कॉल कट गया तो पुट चलाते हैं, पुट कट गया तो कॉल चलाते हैं. 12 के बीच में तो पैसे नहीं आने वाले हैं उनको. बट देन यू कैन स्टिल मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग इफ यू हैव ए मेथोडोलॉजी ऑफ tracking the price through the day high, and then if it is near the day high or within the 10% of day high, go ahead and do that and keep your stop loss within the day high. Otherwise छोटे मोटे मूव में पैसे नहीं आएंगे, चले जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाते हैं डेली के. सर, ये जो डे हाई है, ये कितने बजे के बाद देखना चाहिए? मतलब जैसा आप जब भी एंट्री लो, सपोज करो एक अभी अभी आप मान लो, अभी आप क्या बताऊं आपको, 40,100 का पुट लेने वाले हो. ठीक है. 2 बज रहे हैं, इसका डे हाई मान लो 200 रुपए है और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 120 रुपीज. रिमेंबर, इसका एक्सट्रीम मूव खत्म हो चुका है. आप 120 पे लो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस हिटिंग डे हाई इज वेरी नेग्लिजिबल. तो अगर 200 का डे हाई है, अगर 2 बज रहे हैं, 190 के आसपास है, एक चीज तो कंफर्म हो रहा कि ये एक एक्सट्रीम मूव में है, एक ट्रेंडिंग मूव में है. ऑप्शन बायर कैन नॉट मेक मनी अनलेस देयर इज अ ट्रेंडिंग मूव. सो अगर आपका डे हाई 200 है और करंट प्राइस 190 या 180 है, it is within the 10% of the day high, and then it also confirm, actually it certifies that we are into a trending move. An option buyer need nothing else than the trending move, right? So irrespective of the time, whenever your signal give, so आप ऐसा करो, इसको एक मेकर और चेकर कर दो. डायरेक्शन कैसे निकालना है वो आपके अपने अपने सिस्टम से. एंट्री का ट्रिगर क्या है वो डे हाई का रख लो अपने पास, and try this for few months, few week at least, or you can back test it and come back and tag us and then let us share your experience. आई सपोज जो राजेश जी कह रहे हैं वो ये है कि जब तक मोमेंटम ना हो, ऑप्शंस ना बाय किए जाएं. Exactly right, yeah. और मोमेंटम कैसे पता करें? तो उसके प्राइस से पता कर लो. पेट में फंस जाते हैं. हाँ, वो मैंने देखा. हाँ, और हीरो जीरो नहीं करना है. कपिल, एक सवाल है आपके लिए कि आपने कहा जैसे आप 5 लाख रुपए रखते हो मार्जिन फॉर 1 लॉट, तो इसमें रिटर्न बहुत लो नहीं हो जाती? नहीं, रिटर्न लो नहीं रहती है, कैपिटल पूरा डिप्लॉयड रहता है. ऐसा नहीं कि कैपिटल खाली है. प्रॉब्लम तब आती है जब आपका कैपिटल आइडल पड़ा रहे, तो रिटर्न मैं मान सकता हूँ कि कम आएगा. जैसे मैंने क्या बताया कि 5 लाख का अगर कैपिटल है, तो आप उसमें से कम 2 लाख रुपए रखो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए. उसमें आप कम से कम 3 ट्रेड करो, एक ट्रेड नहीं करना. ठीक है. जैसे गायन फ्लाई कर लिया, एक आप मंथली स्ट्रेंगल दूर का बेच सकते हो. बेच के छोड़ दो 45,000 और 37,000, बेच के छोड़े रखो, क्या ही फर्क पड़ रहा है. और एक कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो वीकली बेसिस पे, या कोई बटरफ्लाई या कुछ भी. तो आपको कैपिटल आइडल नहीं रखना. लेकिन अगर 5 लाख के कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, तो हर स्ट्रेटजी एक ही लॉट में लोगे
तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ये मतलब मेरा तरीका ये है। तो मेरे ट्रेड बहुत सारे रहते हैं, जैसे मेरा ही पोजिशनल में कम से कम 7 या 8 ट्रेड चल रहे होंगे अलग अलग। फिन निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, बैंक निफ्टी में मार्च की फ्लाई चल रही है, अप्रैल की फ्लाई चल रही है, अप्रैल का स्ट्रैंगल चल रहा है, मार्च का स्ट्रैंगल चल रहा है, और 1-2 ट्रेड और चल रहे हैं। तो 7 या 8 ट्रेड अभी पोजिशनल चल रहे होंगे। तो बेसिकली आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने आपको बोला कि आप एक लॉट करो। कपिल, जैसे आपने कहा कि आप कैपिटल आइडल नहीं रखते हो, नाउ से एक नई एक्सपायरी की शुरुआत हो रही है, आज का ही दिन ले लेते हैं, थर्सडे है, तो अब अगले हफ्ते के लिए डिपेंडिंग ऑन कैसा एनवायरनमेंट है, लो विक्स है, हाई विक्स है, तो क्या आप फुल कैपिटल डिप्लॉय कर देते हो अपनी स्ट्रैटेजीज में, और कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपिटल हमेशा रखते हो अपने पास? नहीं, कुछ कैपिटल हमेशा रहता है। जैसे मान लिया मुझे 4 स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है पोजिशनल में, उसमें से मैं क्या काम करूंगा, 2 डाल दूंगा मंथली में, या 1 मंथली में और 3 वीकली में। तो अगर मुझे वीकली का कोटा है कि 3 स्ट्रेटजी डालनी है, तो मैं 2 ही डालूंगा, 1 नहीं डालूंगा अभी, या 1 आज डालूंगा, 1 कल डालूंगा, फिर 1 मंडे डालूंगा। सारी एक साथ नहीं डालनी, क्योंकि बाजार अभी राइट नाउ कैसा है ना, अभी बाजार में कोई ट्रेंड ही नहीं है। बेसिकली आपको लगेगा बुलिश है, अगले दिन बेयरिश हो जाएगा, आपको लगेगा बेयरिश है, अगले दिन बुलिश हो जाएगा। तो आप सारा अगर एक व्यू बना के सारा कैपिटल डाल दोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ हर पूरे वीक में 5 दिन है। राइट नाउ ऐसा बाजार है, 5 दिन में 3 बार व्यू चेंज करना पड़ रहा है वीकली बेसिस पे। तो आपको डिफरेंट व्यूज के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटेजी आप डाल सकते हो, कैपिटल बचा रहेगा। तो सारे ट्रेड एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके 3 ट्रेड लो वीकली में, एक एक करके रोज 1 ट्रेड लो ट्यूसडे तक। राजेश जी, आप भी सिमिलर तरीके से डिप्लॉय करते हो कुछ स्पेयर कैपिटल? हाँ, वो नहीं, अपना तो मोस्टली मैंने दिस इन्वायरमेंट में हम इंट्राडे ही रखते हैं, एंड देन वी गो ऑलमोस्ट 80-85% डिप्लॉयड, बिकॉज वो जो 10% है वो इन केस आई हिट ए ड्रॉ डाउन, देन तो कल मेरे लिए वो प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। एंड व्हाट ड्रॉ डाउन लेवल्स डू यू वर्क विद इंट्राडे के लिए? 6% max. I mean, तो अब intraday 1.5%, but then our strategies we have tested over the last few years. We had instances where back to back 4-5 days we were closing in the red. तो से अगर 1.5% हमारा आज का है, 5 दिन लगातार हम क्लोज करते हैं, तो 6%, 6.5-7% तक जा सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो 10% हम स्पेयर मनी रखते हैं, और इट्स ऑल ऑन द बैक टेस्ट, नेवर नो व्हाट हैपेंस। राजेश जी, जैसे आप बैक टेस्टिंग, यू आर वेरी एक्सपीरियंस विद बैक टेस्टिंग, तो बैक टेस्टिंग में कोई स्पेसिफिक चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए? अर्जुन, अगेन बैक टेस्टिंग आपने जिस इन्वायरमेंट में किया है, आपका रियल टाइम ट्रेड शुड बी इन द सेम इन्वायरमेंट, और ख्याल रखना चाहिए, यू नो, थोड़े आउटलायर तो हटाने पड़ते हैं। जैसे कोरोना का जो फरवरी मंथ था, इट वाज एन आउटलायर, ठीक है। सो आई वुड प्रीफर नॉट कीपिंग इनटू माय बैक टेस्टिंग, बिकॉज सी इट कैन हैपन। आई मीन, कल के दिन कुछ और हो सकता है, यू नो, रूसिया न्यूक कर सकता है, वी नेवर नो। तो आउटलायर थोड़े हटाने पड़ते हैं, and then, you know, event based outlier, otherwise normal course of trading तो ठीक है। but then more than back testing, how do you actually deploy it in the live environment? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, और अगर कोई बाद में ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। see, most of the back testing, you know, is on 1 minute closing candle, ठीक है। तो हम डिप्लॉय करते हैं सारे स्टॉप लॉसेस, एंट्री, एग्जिट 1 मिनट के क्लोजिंग कैंडल पे रखते हैं। इट मैचेस माय यू नो बैक टेस्टिंग रिजल्ट, इट रिमेन्स क्लोज टू द बैक टेस्टिंग रिजल्ट। और एक चीज़ है अर्जुन, हम अभी भी करते हैं लाइव ट्रेड, जो भी MTM आया दिन का, वी रन द सेम बैक टेस्टिंग सेटअप वंस इन अ वीक, एंड देखते हैं कि उसमें डेली वाइज जो भी आउटपुट आ रहा है, इज इट स्टिल मैचिंग टू माई रियल टाइम ट्रेड, और डिफरेंस, लाइक रियल टाइम में प्रॉफिट है, वहाँ लॉस है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है हमारे पूरे सेटअप में, राइट, या स्लिपेज आया है या कुछ आया है। तो फिर वो हम वंस इन अ वाइल कर लेते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन में वो कर लेते हैं, लाइक रन द बैक टेस्टिंग वन मोर टाइम एंड देन सी द डे वाइज एंड आवर परफॉर्मेंस, व्हाट वी हैव डन डे वाइज। यानी एक्चुअल ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के रिजल्ट्स आप टैली करते हो? हाँ, मैंने वो कोई फिक्स नहीं है, कभी 7 दिन में कर लेते, कभी 10 दिन में कर लेते, कभी 2-3 वीक भी नहीं कर पाते, बिजी है तो। बट देन वी डू मैच सम टाइम, आई ऑफ लाइक 2-3 स्टॉप लॉस हो गए दिन में, तो बैठ के मैच करते हैं। कपिल, एनीथिंग टू ऐड बैक टेस्टिंग में? बैक टेस्टिंग में मैं इतना ही ऐड करूंगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हो रही थी
कि क्या डिफरेंट डेज पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज प्ले करनी चाहिए कि नहीं। मैं उसमें बस एक पॉइंट ऐड करूंगा। सो इस पे ना दोनों टाइप के थॉट मार्केट में है। दोनों दोनों टाइप के थॉट और स्कूल आपको मार्केट में मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज प्ले करनी चाहिए जो थोड़ा यूनिवर्सल टाइप की हो और रोज कुछ चले। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इसका कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी रखो जो रोज चल रही हो, थोड़ा बहुत, और आपको फिर डे स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। मतलब हमने जितनी बैक टेस्टिंग करी, हमें एक चीज सिंपल समझ में आई कि मंडे और फ्राइडे चलेगा डायरेक्शनल बाजार, आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज पे जाना ही पड़ेगा, नॉन डायरेक्शनल नहीं चलेगा। ट्यूसडे आपका नॉन डायरेक्शनल चलेगा, वेडनेसडे आपका नॉन डायरेक्शनल चलेगा बड़े एसएल के साथ। ये सिंपल सेट हमने बनाया। उसके बाद फिर इन डेज के लिए आप स्ट्रेटेजीज खोज लो। कपिल, ट्यूसडेज में जैसे आपने कहा कि नॉन डायरेक्शनल ज्यादा चलता है, तो क्या कोई चेंज आपने नोटिस किया है फिन निफ्टी के आने के बाद या पिछले कुछ 6 महीनों में? फिन निफ्टी की वजह से ही वो नॉन डायरेक्शनल हो गया ट्यूसडे में। बेसिकली वो क्या गया है, फिन निफ्टी ऊपर जाता है नीचे जाता है, हाँ स्पाइक है लेकिन है नॉन डायरेक्शनल, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डायरेक्शन नहीं है। हाँ बट कपिल यू नो व्हाट, दिस ट्यूसडे में W या M बनना बंद कम हो गया, लाइक इट रिमेन्स इन अ डायरेक्शन, डज नॉट मेक अ लाइक टुडेज एक्सपायरी ऊपर गया नीचे आया, ऐसा नहीं होता है। हमारा तो ट्यूसडे अभी भी नॉन डायरेक्शनल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। अभी हम फिर निफ्टी नहीं कर रहे हैं, उसको तो डेटा आने तो बैक टेस्टिंग करने में तो सुविधा होगा, अभी तो बहुत कम डेटा है ना, नहीं कर सकते इसमें। तो डिफरेंट आपको कौन सा दिन पिछले एक साल में किस तरीके की स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट कर रहा है, तो उस टाइप की स्ट्रेटेजीज में आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप अगर मंडे आप लगाओगे, मंडे का बैक टेस्ट करोगे, तो नॉन डायरेक्शनल को या री एंट्री को नहीं सपोर्ट करता है मंडे, आप टेस्ट कर लो जितना मर्जी। लेकिन आप जैसे कोई डायरेक्शनल सेटअप मंडे पे डाल के देखो, वो अच्छा पैसा देगा कि एक ऐसा उड़ गया, एक लेग चल रही है, वो उसके रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे पूरे 1-1.5 साल के या 2 साल के भी देखोगे तो अच्छा रिजल्ट है। कपिल, फिन निफ्टी पे भी आप कुछ कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, सफिशिएंट लिक्विडिटी? केवल पोजिशनल पे, नॉट इंट्राडे। राजेश जी आप? नहीं अर्जुन, उतना सफिशिएंट डेटा नहीं है, आप बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी तो और देखो फिन निफ्टी भी शुरू में तो वॉल्यूम था ही नहीं ना, तो थोड़ा उसको और टाइम देते हैं, थोड़ा डेटा आने देते हैं, वी कैन डू सम टेस्टिंग, वी कैन अराइव सम डिसीजन, बट अभी तो केवल विशफुल हो जाएगा वो कुछ भी करना, तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं उसको। लेकिन राजेश भाई वनीला सेटअप बहुत चल रहे हैं अभी, उसमें यही पैसा दे रहे हैं वनीला सेटअप भी, फिर जब तक आप बैक टेस्ट करोगे तब तक वनीला चलने बंद हो जाएंगे उसमें भी। हाँ तो थोड़ा डायनामिक रखेंगे अपना, अभी भी अपना डायनामिक है। आई थिंक 1 घंटे की लिमिट होने वाली है। पीटर, डू वी हैव टाइम? और Yeah, we can spend another 5 minutes, not a problem. It's very interesting discussion. बहुत अच्छा लग रहा है राजेश जी और कपिल जी का आंसर, lot of input, and I think all the audience also enjoying. राजेश जी, एक स्पेसिफिक सवाल है फॉर समवन हु इज कमिंग न्यू टू द मार्केट्स, उसको किस टाइप की ट्रेडिंग या किस टाइप के सेटअप्स के लिए जाना चाहिए? अब कोई कहता है इंट्राडे करो, कोई कहता है पोजिशनल करो, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? So let me make little change to your question. Coming new to the derivative market, ठीक है। देखो दो चीज जान लो आपको, यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड इंडेक्स। अभी तक हमने 1 घंटे में जो बात की केवल इंडेक्स की बात की। If you are new to the market, you start with a mix of derivative and index, because I'm sure you don't start with the big bang capital, right? You start with a very limited capital or a, तो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाए कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अर्जुन, मैं अभी भी स्टॉक करता हूँ, ठीक है, बट देन मुझे कंफर्ट इंडेक्स में ज़्यादा आता है। हाउएवर एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, stocks give me better return than index. ठीक है, तो पहले तो वो कर लो, start both and then find your comfort area, stocks या index। मेरे उम्मीद से मोस्टली लोग इंडेक्स में आ जाते हैं, and then you know what, keep it intraday to start with, and then once you master the art, then go for the overnight. Again, don't one size does not fit all, तो आपको अपने strategies market conditions के हिसाब से change करते रहने पड़ते हैं। On a higher volatile market, it's good to have a less risk appetite than a very still market. राजेश जी, आपके लिए एक और सवाल आया एक लिसनर से।
वो कह रहे हैं मैं री एंट्री तो ले लेता हूँ, लेकिन पहले मैं लॉस लेता हूँ ट्रेंड में, फिर मैं डालता हूँ री एंट्री, फिर मैं लॉस लेता हूँ री एंट्री में। अब ये इससे डील कैसे किया जाए? You have to limit the number of re-entries. I don't know when your exit. If my exit is intraday, I don't go beyond 2 re-entries. ठीक है? If my exit is intraday, I don't go beyond 2 re-entries. और आपका stop loss भी, अगर आपका re-entry है तो stop loss should not be more than 20% of your premium you have earned. ओके कपिल, एक और सवाल है, जब आप स्ट्रैंगल्स करते हो तो आप स्ट्रैंगल्स की एडजस्टमेंट कैसे करते हो? वो अगर मैं कर रहा हूँ इंट्राडे तो उसका अप्रोच अलग है, और अगर मैं कर रहा हूँ पोजिशनल तो उसका अप्रोच एकदम अलग है। वो लेवल के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ। मैं जब मंथली स्ट्रैंगल बेचता हूँ तो अपने चार्ट पे लेवल मार्क कर लेता हूँ, कुछ माइनर लेवल, कुछ दो मेजर लेवल। दो मेजर लेवल मतलब एक अपसाइड में एक डाउन साइड में, कि अगर ये टूटा तो फिर भाग सकता है बहुत ज्यादा डायरेक्शनल। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि सेल लेग को ही शिफ्ट करूंगा लॉस वाले मेकिंग को। जब तक माइनर लेवल के बीच में रहेगा तब तक मैं अपोजिट लेग को इनसाइड लाऊंगा। तो मेरा तरीका ये है। मतलब मेरा ये मानना है कि स्ट्रैडल तक कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपने स्ट्रैंगल सेल किया है, आपका अप्रोच है स्ट्रैंगल सेल करना और स्ट्रैंगल से पैसा बनाना है, तो आपको कभी भी स्ट्रैडल पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रैंगल को एडजस्ट करते 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 स्ट्रैडल तक आ गए, तो इट मीन्स कि जब आप वो स्ट्रैडल में क्रिएट हो चुका होगा, तब तक आप लॉस में खड़े होंगे। और अगर आप लॉस में खड़े होके भी स्ट्रैडल मैनेज करने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर लॉस से क्यों स्टार्ट करना, डायरेक्ट स्ट्रैडल बेच लो। मेरा अप्रोच ये है। तो स्ट्रैडल पे नहीं जाना है, स्ट्रैंगल में ही रहना है। जब पैनिक आए, जिस साइड पैनिक आए उस साइड लॉस बुक करके, जैसे मेरा सिस्टम, अगर मैं 100 रुपीज का ऑप्शन बेच रहा हूँ, अगर या तो मेरा कोई लेवल ब्रीच हो जाए मेजर लेवल, या वो 100 रुपीज वाला 200 हो जाए, तो मैं उसको कट करके 200 पे और वापस 100 का ऊपर जाके सेल कर देता हूँ। ऐसा मैं 2 बार करता हूँ, 2 से ज्यादा बार नहीं करता। ओके गॉट इट। कपिल, एक आखिरी सवाल है। रितेश कह रहे हैं कि आपने कहा कि कुछ वनीला सेटअप्स हैं जो फिन निफ्टी में चल रहे हैं, तो रितेश कह रहे हैं भाई साहब हमें भी बताओ ये क्या वनीला सेटअप्स हैं, कौन से वनीला सेटअप्स की आप बात कर रहे हो? अर्जुन, मैंने तो कल का टिकट कटा लिया, कल आ रहा हूँ कपिल के पास। आ जाओ आ जाओ। वनीला यार, मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ा सा फिर निफ्टी बैक टेस्ट किया था, तो मेरे ख्याल से 22% और 20 to 25% के बीच में 5 में से 2-3 दिन चल रहा है। एक री एंट्री लगा के, और 2 दिन चल रहा है कंबाइंड। मतलब कितना हमने लिया था, कोई तो भी 1600 रुपीज का 40 पॉइंट का एक एसएल लेके कंबाइंड पे, वो 2 दिन वो चल रहा है। सिंपल वनीला, और कुछ नहीं, अच्छे पैसे दे रहा है। मतलब आई थिंक कैपिटल डबल कर दिया उसने 6 महीने में। एनीथिंग इंट्राडे कपिल? हाँ, ये इंट्राडे के लिए बताया अभी। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में तो स्ट्रेडल खाली, और कुछ नहीं। नथिंग ऑन ट्रेंड, सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल? नहीं, अगर ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड के साथ, लेकिन ट्रेंड आजकल है ही कहाँ। ग्रेट, थैंक यू ये तो सो मच कपिल एंड राजेश जी। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन, आपने टाइम दिया अपना। थैंक्स अ लॉट। टाइम इज रनिंग आउट नाउ फॉर द ट्विटर स्पेसेस। पीटर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? No, I think it was a very good session and great learning, great discussion. I hope everyone has enjoyed, right? Yes. Thank you very much, Arjun, for hosting this wonderful session. Thanks a lot for joining us. And also, I would like to thank all our panel members, Kapil Dama and Rajeshri. So आप लोगों को आए बहुत बहुत अच्छा लगा and बहुत कुछ knowledge था मेरे लिए भी. I learned many things and I hope all the audience also liked this discussion. Thank you very much for joining, Rajeshri and Kapil. Okay, sir. Okay, thank you everyone for joining. Yeah, I would like to thank all the attendees who our listeners who joined today's session. Thank you very much for joining us. This concludes our option trading webinar. The option is yours. We hope this webinar helped you to get better clarity on different aspects of option trading and plan your trade better. Follow us and keep watching this space for more such educative events. Goodbye. Thank you all. Thank you. Thank you.